So hello students, welcome all of you in your class of computer. And yes, this will be the last segment and this will be the last session of our Python programming language, the coding orientation program. And yes, I know that you have enjoyed the classes very well and you have understood and learned many things in the coding and the perspective of coding and the programming languages. I know that you have enjoyed the coding in much detailed manner because many of students has sent me their coding practices, their coding snippets also to me. So it's very pleasing to me as a teacher that see your students is performing very practical practices. So very good and keep it up. Keep sending me your practices. Okay, just like Vipul Modi and other students has sent me the coding snippets. So it's very good. Good. They are doing their jobs very well. So yes, today we will do two types of program or two or three programs in Python, in which first we will calculate or we will find how to find out the area or parameter of different shapes. Whatever the shape you will tell me, I will just make the program of that. So let's start together. So we will make the program for finding the area of different shapes. Okay. So what is the basic criteria that we need to just find out the area of any kind of shape? Yes, it is the very mandatory thing, the formulas. So we know our formula. So for your help, for your concern, I am writing all the areas. Okay, so area of rectangle is क्या होता है? Length multiply by breadth. ओके, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ यानी कि L इंटू बी कई बच्चे इसको बोलते हैं. ओके, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर बोल सकते हैं आप, या इसको आप बोल सकते हैं साइड माइनस साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. फिर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. तो पाई की जगह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 22/7 या फिर 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, है ना. तो आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर मल्टीप्लाई बाय आर. ओके, रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस. फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ओके, तो बेस इंटू हाइट जो भी आप उसको बोल सकते हो. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.50 मल्टीप्लाई बाय बेस multiply by height. Okay, so these are the area of rectangle, square, area of circle and area of triangle. Why I have wrote the 0.50 here? Because the value of half can be denoted as a 0.50 and we cannot write the exact fractional value in any kind of language. Just like we cannot just write this kind of things because it will look so tacky and you will not understand it by much manner. Okay, so this is how we have understood what are the areas of the basic shapes. Now how we will imply these formulas in our coding. So let's start together. Okay, so हमें अगर निकालना है किसी भी एरिया शेप्स का तो हमें क्या चाहिए होगी? सिंपल सी बात है, हमें लेंथ चाहिए होगा और ब्रेड्थ चाहिए होगी. किसके लिए? रेक्टेंगल के लिए. हमें साइड चाहिए होगी किसके लिए? स्क्वायर के लिए, है ना. तो ये सब हमारी नीड की रहेंगी. Yes, and if we want to calculate the area of circle, then we need the radius. Okay, and if we want to calculate the area of triangle, then we need the base and then we need the height. Okay, so yes, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हम ये सब यूजर से इनपुट करवाएंगे. Very obvious to think. ठीक है, तो चलिए मैं लेता हूँ LENGHT लेंथ नाम का वेरिएबल. यहां से मैं उसको कहता हूं कि चलिए आप इनपुट करिए. मैं एक साथ ही सारा प्रोग्राम बना रहा हूं, ठीक है ना. एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये आ जाएगा अपने पास लेंथ. ये लाइन लिखने से लेंथ आ गया तो अपने को क्या चाहिए? ब्रेड्थ. तो ब्रेड्थ नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, इंट लिखा क्योंकि मेरे को नंबर चाहिए. इनपुट लिख रहा हूं ताकि यूजर जो है अपना
ब्रेड्थ जो है वो एंटर कर सके। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एंटर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पर मैंने यूजर से ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल करवा लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि एरिया निकालूंगा। तो एरिया नाम का मैंने क्या बना दिया, वेरिएबल, या फिर मैं बना सकता हूँ रेक्टेंगल नाम का। तो मैंने REC रेक्टेंगल नाम का एक वेरिएबल बना दिया। इसमें मैं क्या करूंगा, बस ये फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो लेंथ अपने किस में आई थी, LENGHT में, और ब्रेड्थ किस में आई थी अपने BREADTH ब्रेड्थ नाम के वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पर यही चीज कर रहा हूँ, लेंथ, स्पेलिंग का ध्यान रखना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो अब ये जो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है ये किस में चला जाएगा, REC नाम के वेरिएबल में। तो अपने प्रिंट इसी को कराएंगे, द एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल इज, ठीक है, द एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल इज REC ब्रेड्थ। ओके, आई कि नहीं आई बात समझ में आप लोगों को। अब मैं इसको सेव कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ इसको एरिया नाम की फाइल से। ठीक है, एरिया मैंने कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसको एक कमेंट दे देता हूँ ताकि आप लोग अपनी जो है कोडिंग समझ सकें। फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। अब मैं क्या करूंगा, फाइंडिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब अपने स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। सॉरी, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए होगा, साइड। तो मैंने यहाँ पर बनाया साइड नाम का वेरिएबल, फिर वही यूजर इनपुट इंट INPUT इनपुट। अब मैं यूजर से कह रहा हूँ कि भाई एंटर साइड ऑफ स्क्वायर, एंटर साइड ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर अपने पास साइड आ जाएगी। फिर मैं क्या बनाऊंगा, स्क्वायर का बना रहे हैं तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया SQR। तो कोई भी वेरिएबल आप बना सकते हैं। SQR नाम के वेरिएबल में मैं क्या करूंगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब ये साइड और मतलब कि स्क्वायर का एरिया किसमें जाके स्टोर हो चुका है, SQR नाम के वेरिएबल में। तो मैं इसी को प्रिंट करा दूंगा। ओके, प्रिंट में मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर इज, एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर किस में आ रखा है, SQR में क्यों लिख रहा है, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि SQR में जाके वो कैलकुलेट हुआ है। अब मैं कमेंट दे रहा हूं, फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कल। ओके, फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल के लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस। तो मैं रेडियस नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, RADIUS। रेडियस के बाद मैंने लिखा इंट इनपुट एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का रेडियस आ जाएगा अपने पास। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CIR में अपने क्या करेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस। ओके, तो ये अपने फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। अभी किस में जाके कैलकुलेट हुआ, CIR में। तो अपने CIR को प्रिंट करा देंगे। प्रिंट में मैं क्या लिखूंगा, द एरिया ऑफ गिवन सर्कल इज, गिवन रेडियस है ना, गिवन रेडियस ऑफ सर्कल इज, इसमें आ जाएगा CIR में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक नया दे रहा हूँ कमेंट ताकि आप लोग अपनी कोडिंग को समझ सके। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एरिया कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या चाहिए होगा, बेस और हाइट। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बेस नाम का वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर मैं इंट कर रहा हूँ इनपुट एंटर द बेस ऑफ ट्रायंगल। बेस मांगेंगे अपने यूजर से कि भैया बेस बताओ, तभी तो मैं कैलकुलेट करके दूंगा। बेस के साथ और अपने को क्या चाहिए, हाइट। तो HEIGHT हाइट। फिर मैं इंटीजर में कर रहा हूं क्योंकि ये सब नंबर है। ठीक है, एंटर द हाइट ऑफ
ट्राइंगल। ओके, ये देखिए ये आ गया अपने पास बेस और हाइट। अब मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल का है तो TRI नाम का मैंने बना लिया एक वेरिएबल। इसमें मैं क्या करूंगा 0.50 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय HEIGHT हाइट। ठीक है, ये हो गया। अब ये किसमें आ रहा है TRI नाम के वेरिएबल में, तो मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल इज, ठीक है, किसमें आ रखा है TRI में, तो यहाँ पर मैंने TRI को बंद कर दिया। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ये कोड हमने लिखा है, ये है हमारा रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए, ये हमारा स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए, ये है हमारा सर्कल के लिए, और ये है ट्राइंगल के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमने यूजर से इनपुट करवाया है, उसके बाद हमने इसको इंप्लीमेंट किया है। तो चलिए देखते हैं, रन करके देखते हैं कि क्या जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मांग रहा है एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। मान लीजिए मैंने लेंथ डाली है 12 और ब्रेड्थ डाली है मैंने 8, तो 12 8 से कितने होते हैं 96। यस, अब मेरे से मांग रहा है एंटर साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड बता दो, मान लीजिए मैंने बताया 6, तो 6 6 36। यस, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। मान लीजिए मैंने रेडियस दिया सर्कल का 14, तो इसका क्या आ जाएगा, अब ये कह रहा है 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने इंटीजर में ले रखा है, और यहाँ पर हम इसको इंटीजर में नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, क्योंकि ये पॉइंट वैल्यूज है। इसी कारण से मुझे यहाँ पर बेस और हाइट को भी क्या करना पड़ेगा, फ्लोट में ही करना पड़ेगा, FLOAT, फ्लोट। ओके, अब मैं इसको सेव करके देखता हूँ। ओके, यस, 12 दिया। अब ये देखिए रेडियस इज नॉट डिफाइंड, वेयर वी हैव डन अ मिस्टेक। So 12, 6 and the size I have given 4, radius of circle 12। yes, देखिए radius of circle क्या निकल के आया 452.15999 and etc। अब मान लीजिए enter the base of triangle। ट्रायंगल का मैं बेस दे रहा हूँ 10, ओके, और हाइट दे रहा हूँ मैं 8। तो यस, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 80, और 80 का डिवाइड कर दिया कितना 5 से, तो कितना हो गया, सॉरी आधा कर दिया तो कितना हो गया 40। तो ये देखिए आप लोग जो डिफरेंट डिफरेंट शेप है उनके डिफरेंट डिफरेंट आपने क्या निकाल दिए, एरिया कैलकुलेट किया है। ये बहुत ही इजी सा एग्जांपल था, एक इजी सा जो भी था हमारे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस थी। ठीक है, तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ गिवन शेप। So yes students, now we have understood how we can calculate the area or parameter. So I am giving you a task to calculate the parameter of every shapes, and then make the program and then send the snippets to me. Okay, so yes, our next task is evolution of different expression. Okay, यहाँ पर अपने कुछ expressions दे रखे हैं, यानी कि कुछ algebraic expression नहीं है, ये basic simple mathematical expressions हैं। इनको अपने को मान लीजिए एवोल्यूट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अपने को यूजर इनपुट करने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पर अपने को सीधा एक फॉर्मूला लगाना है। तो अपने क्या करेंगे, सीधा देखते हैं करके कि प्रिंट 20 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। क्या ये सीधा सीधा रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलिए करके देखते हैं। इसको मैंने सेव किया, रन किया, ये देखिए माइनस का 60 आंसर आ रहा है। अब आप इसे मैन्युअली अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा, आप अगर इसको करके देखें तो कौन बताएगा मुझे। So yes, this is how we have understood that we can implement any kind of different expression in the Python also. But if you are using the algebraic expression, then it will not run successfully, because it may ask you about the value of A, B, and C, etc. But you can try to your best. You can try to your level. I will not lead you that. Okay, now we will run the second expression. Print, okay, 4 multiply by 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज ऑफ print function. Okay, who will tell me the answer of this following expression? So yes, it will return the answer of 28.
So yes, this is how we can implement the different kind of expression in the Python by just implementing the print statement, and in which you can write your expression and then it will return you the correct answer. Okay, so this is how we have completed our Python programming language session, and we have covered so many Python programming practices, and I will send you the PDF file of the Python programming programs. Then you will have to just write the program, whether you will write your program in the copy pen manner or you will write the program in the PC or using the laptop. Okay, so I hope that you have enjoyed your Python programming language session. So until then, take care. Bye bye.